अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेस वार्ता चल रही है और उसमें सरकार के शीर्षस्थ लोग शामिल हैं। सो योर क्वेश्चंस? We don't know. That's for the government to know. Where is he? Has he been arrested? Has he been spotted in any vibrant summit? Or will he be accompanying the Prime Minister in his next trip in the first week of May to Europe? We don't know. Maybe that's when we'll get to see him, because that's when we normally see industrialists in this country traveling with the Prime Minister. Giving loans is the primary duty of banks. Taking loans is the right of entrepreneurs. Frauding banks did not happen during our era. We, Sanjay Nirupam and I, last month exposed the entire new law put in place, wherein NCLT, the collusion between NCLT and the so-called bankrupt companies was exposed. So what is this? They are institutionalizing fraud. This government has put in place mechanisms to institutionalize fraud and bank robberies. We did not do any of that. We gave loans as banks because that's their duty. How else do you think the economy was doing so well? Look at the GDP then. Look at the unemployment figures now. Look at what's the MSME sector's health today. Look at what it was during Dr. Manmohan Singh's time. So there can be no comparison. When the economy was on track, obviously people were taking loans from the banks, and obviously the banks were giving loans. And the result was seen in our GDP figures. The result was seen in the health of our economy. Now what is the situation? I have given you 3 facts at the beginning of my press conference. And yet, the state of the economy is for everyone to see. On the same lines, even last year, banks had filed a complaint against Reliance Communications, that is Anil Ambani's company, but till date the agencies have not registered any case. Obviously. Are you suspecting that there is some kind of a role from the government in directing the agencies? No, you just compare. Just compare the hyperactive CBI, ED and other agencies in Maharashtra, and look at their total inactivity in the same state against friends of Mr. Narendra Modi. So it's not even rocket science. It's for everyone to see, whether you are interested in politics, whether you are a journalist, whether you are a spokesman or not. It's for everyone to see from naked eye what is happening in this country today. आइए। किस मुंह से वो ये बातें करते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। 26 लाख करोड़ तो आप सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में अर्जित कर चुके हैं पेट्रोल डीजल पर। उसका हिसाब दिया आज उन्होंने मुख्यमंत्रियों को। बोलने से पहले उन्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। राज्यों को आप जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो देने में रुला देते हो, लिटरली रुला देते हो। उसके बाद किस मुंह से ये हिम्मत दिखाकर कहते हो कि आप वैट कम कर दीजिए? क्यों नहीं आप सेंट्रल एक्साइज कम कर सकते? 26 लाख करोड़ के बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो इनके अनपढ़, माफ कीजिएगा, अनपढ़ मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे 1-2 ही हैं, इसलिए सब मालूम है आपको किसकी बात कर रहा हूं। इनके अनपढ़ मंत्रियों में से एक आकर कहता है कि जो वैक्सीन लग रही है इस पैसे से लग रही है। रणदीप जी और प्रणब जी ने एक दिन बैठकर कैलकुलेट किया कि वैक्सीन पे कितना खर्चा आया। उसका 1.5-2% वैक्सीन पे खर्चा आ गया, चलिए मान लेते हैं। दूसरा अनपढ़ मंत्री आकर कहता है नहीं वैक्सीन पे नहीं हो रहा, ये जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर हो रहा है। ये दोनों भाई फिर बैठ गए। ये लोगों को भी है ना, बैठकर कैलकुलेट करते रहते हैं। फिर मालूम पड़ा कि चलिए 4% उसका हो गया। तीसरा मंत्री आकर कहता है नहीं सड़कें बन रही हैं इससे। फिर इन्होंने कैलकुलेट किया
10% वो भी निकाल दो। चौथा सबसे ज्यादा अनपढ़ मंत्री आया, वो कह रहा है नहीं नहीं, ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही। यूपीए के वक्त जो ऑयल बॉन्ड्स थे, ये उसका भुगतान किया जा रहा है, ये सब फिर आ गए। ये लोग सुधरेंगे थोड़े, ये दोनों फिर आ गए। बोले नहीं, वो तो 1,20,000 करोड़ है। अब 26 लाख करोड़ में से चलिए आप 8 लाख करोड़ ये चारों अनपढ़ मंत्रियों के अकाउंट में डाल दो, बाकी पैसों का हिसाब दिए ना, दे दें। आज क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री को आज बैठकर इन 26 लाख करोड़ का हिसाब देना चाहिए था, चारों अनपढ़ मंत्रियों को अपने साथ बैठाना चाहिए था, फिर इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाता। $26 लाख करोड़ 8 साल। The Honorable Court has made certain observations. The entire country, and I hope that includes the mayor of North Delhi and the BJP leaders, the entire country heard those observations. What is happening in this country is definitely unconstitutional. I have been part of the Delhi government for 15 years. There is a procedure. Demolition also is accompanied, is preceded with a procedure. Ask them if they followed that procedure and you'll get your answers. सर, चुनावी रणनीति का प्रधान पिछड़ों से जो बातचीत चल रही थी पार्टी की, जिसके बारे में खबर है उन्होंने ठुकरा दिया आपका ऑफर, तो जिज्ञासा है लोगों में कि किस वजह से ये बातचीत टूट गई और पीछे क्या चाहते थे कांग्रेस से, जो कांग्रेस ने नहीं किया, जिस वजह से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देखिए, जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो व्यक्तियों से ऊपर उठ के बात करते हैं। जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत के किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, पूरे भारत की बात करते हैं, भारत के पूरे चरित्र, सिद्धांत, मूल्यों की बात करते हैं। ठीक उसी तरह जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो जिन मूल्यों से भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो पहचान विश्व में बनी है, उन्हीं मूल्यों से कांग्रेस की पहचान इस देश में है। आज से नहीं, 137 सालों से है। वो व्यक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जब बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी व्यक्ति से बड़ी है, तो उसका अर्थ वो राहुल गांधी हो, प्रणव जी हो, पवन खेड़ा हो, कोई हो, वो उन सबसे बड़ी है। कांग्रेस पार्टी हर गली मोहल्ले में, गांव ढाणी में अपनी मूल्यों और सिद्धांतों की वजह से एक पहचान बनाई है। कांग्रेस की सरकारों ने जो पहचान बनाई है पिछले 70 सालों में, वो अपना काम करके जो छाप छोड़े हैं लोगों के दिलों पर, वो है पहचान उसकी। तो अब अलग अलग वक्त में रणनीतिकारों से भी मुलाकात होती है, आप जैसे साथियों से भी सुझाव आते हैं। आप अभी भी कोई सुझाव देंगे तो हम जरूर लेंगे, ग्रहण करेंगे, आप दीजिए। अब उसमें आप कह देना कि भाई वो क्या उन्होंने मांगा, क्या आपने नहीं दिया, क्यों उन्होंने ठुकराया, ये बातें बिल्कुल महत्व नहीं रखती। क्योंकि जो लार्जर पिक्चर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो एक बड़ा परिदृश्य है, वो क्या है? वो है कि राष्ट्र निर्माण की जो एक सतत प्रक्रिया है, उसमें एक ऐसा लगता है कि ठहराव आ गया, रुक गई है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पिछले 8 सालों में। और वो संघर्ष, और ये बात मैं कई बार खुलकर भी कहता हूं कि कांग्रेस जब जब संघर्ष के रास्ते से थोड़ी सी भी भटकी है, उसने सत्ता गंवाई। हमें मालूम है कि कैसे संघर्ष के रास्ते पर वापस आना है। बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, और आप गाड़ी भी चलाते हैं तो जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसको मैन्यूवरेबिलिटी में टाइम लगता है, मोड़ने में भी टाइम लगता है, रोकने में भी टाइम लगता है, स्पीड में भी टाइम लगता है। ठीक वैसे ही इतनी बड़ी पार्टी जब कोई निर्णय लेती है, वो निर्णय कोर्स करेक्शन का भी हो सकता है, उसको समय लगता है। लेकिन हम
एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सजग है अपनी इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को लेकर कि हमें राष्ट्र निर्माण की जो सतत प्रक्रिया है उसको फिर से प्रारंभ करना है और ये देश प्रतीक्षा कर रहा है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये देश प्रतीक्षा कर रहा है, आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कांग्रेस फिर से अपने संघर्ष वाली शैली में पूरी तरह से आ जाए। हमारे जो नेता हैं वो पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, हम सबको भी उसी तरीके से संघर्ष के रास्ते पे आना होगा। यह देश फिर से प्रगति के रास्ते पर चलेगा, यह मैं आपको वादा कर सकता हूं। अच्छा, हाँ हाँ, क्या प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि जो ऑफर कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको दिया गया और तभी दिया गया होगा कि प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन से कांग्रेस पार्टी कन्विंस। तो क्या उस व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से ये जो डायलॉग था या ये जो अलाइनमेंट था ये नहीं इस आप पहले सारे पूछ लीजिए, फिर एक ही बार जवाब देते हैं। आप भी कुछ पूछिए ना। अरे आपने क्या समझ रखा है? Anyone else? सप्लीमेंट्री और उसी में जो पीके ने रिप्लाई किया, जो जिसमें उन्होंने कई दस्ते हुए कहा कि उनसे ज्यादा कांग्रेस को एक नेतृत्व की जरूरत है और ताकि वो अपनी मूलभूत समस्याएं जो है उसका निपटारा कर सके। समझ पर क्या रिप्लाई देंगे? समझ लक्ष्मी वैसे मैंने आपको इस पूरे प्रकरण के शुरू में ही बोल दिया था कि कांग्रेस पार्टी और भारत दोनों व्यक्तियों से बड़ा होता है, लेकिन चूंकि आपके सारे सवाल व्यक्ति पर ही हैं तो महत्वाकांक्षा के विषय में मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई उत्तर बनता है। महत्वाकांक्षा मेरी भी है, इनकी भी है, आपकी भी होगी अपने संगठन में। महत्वाकांक्षा होना कोई बुराई नहीं होती, मैं उसको बुरा मानता भी नहीं हूं। तो उस पर मैं क्या जवाब दूं, मुझे नहीं समझ में आया आपकी बात। देखिए एक मौका समझ, एक मौका आई अंडरस्टैंड, एक मौका उन्हें जरूर दिया गया कि आप भी इस हवन में, इस यज्ञ में शामिल हो जाइए। उनके कारण रहे होंगे कि उन्होंने इनकार कर दिया। उनके क्या कारण रहे हैं उस पर तो मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं। नाम तो मेरा पीके है, लेकिन मैं वो पीके नहीं हूं कि मैं उनकी तरफ से जवाब दे सकूं। हो गया, आपको भी जवाब तो मिल ही गया लगभग। कांग्रेस पार्टी के खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं। आप सुझाव देंगे जैनेन्द्र जी, आपके लिए भी खुले हैं। सुप्रिया जी सलाह देंगी, उनके लिए भी खुले हैं। कोई भी सलाह दे, और एक जीवंत संगठन को अपने खिड़की दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। यहां तो हमारी ऐसी सरकार बैठी जो देश के संस्कृति के खिड़की दरवाजे बंद कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी यह समझती है, महात्मा गांधी कहते थे कि अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि नए विचार उसमें आ सकें, नई बातें उसमें आ सकें। तो कभी भी खिड़की दरवाजे बंद नहीं होते। जैनेन्द्र जी, हो गया जी? श्योर। There has been a concerted effort
not from today, not from yesterday, not from 2014, but from 1925, to make sure that India stays divided. That effort, I am afraid, comes from Nagpur. Whether they are in power or they are out of power, they will always try and divide Indian society. The Britishers gained a lot out of this concerted effort by the RSS. I don't know which country today is getting the advantage of these efforts by the RSS. ये हिंदुस्तान को बांटने की जो प्रक्रिया है वो आज से नहीं शुरू हुई, 2014 से नहीं शुरू हुई है, 1925 से जब से आरएसएस का जन्म हुआ है तब से चल रही है। तब अंग्रेजों को लाभ पहुंचता था, आज किस देश को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं हमें नहीं मालूम, कम से कम ये जरूर जानते हैं कि भारत को तो नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से ये कि वो के ऊपर टैक्स लगाएं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को देखते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रधानमंत्री को समझा दें कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता, ये टू वे ट्रैफिक होता है। केंद्र में आप सरकार में बैठे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया 26 लाख करोड़ आप सेंट्रल एक्साइज से पेट्रोल डीजल पर कमा चुके हैं 8 सालों में, उसका पहले हिसाब दीजिए और फिर दिल बड़ा दिखाते हुए उसको बांटिए उपभोक्ता को।